Hello, everyone. A very good evening to all of you, and welcome back. Good evening, everyone. Vishal, Amresh, Sumit, Satyaprakash, Dinkar, Abhishek. Am I audible? आवाज मेरी आ रही है आप तक क्लियर? Good evening, everyone. Am I audible? Visible properly? Is everything all right? All settled? Can we start today's discussion? चलिए, वेरी गुड. सो फार अभी तक जो है हमने बोलने के बहुत सारे टेक्निकल एस्पेक्ट को बहुत ही डिटेल्ड मैनर में डिस्कस किया, राइट? सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल काइंड्स ऑफ टेक्निकलिटीज एज फार एज आवर स्पीकिंग इज कंसर्न. एंड अब हमने स्टेप बढ़ा लिया है आगे कि भाई अब जब बोलने पे चाहे वो प्रोनाउंसिएशन है, डिक्शन है, वॉइस मॉड्यूलेशन है, वोकल इंटोनेशन है, पिच है, वॉवल प्रोनाउंसिएशन कैसी है, कॉन्सोनेंट प्रोनाउंसिएशन कैसी है, ये सब कुछ जब हम समझ चुके हैं और प्रैक्टिस कर चुके हैं, बाकी की प्रैक्टिस आपके साथ है. सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द कंटेंट, बिकॉज इफ यू डू नॉट हैव द कंटेंट व्हाट विल यू स्पीक देन, राइट? सो अब हम अगले पड़ाव पे बढ़ चुके हैं और कल कुछ एक्टिविटी हमने की थी, एंड द वेरी पर्पज ऑफ दोज दैट एक्टिविटी इज टू ट्रिगर योर माइंड. लाइक इन द लास्ट सेशन आई हैड गिवन यू दीज 3 टॉपिक्स. Religion is the opium of masses. Cultural policing in India is a necessary evil, and desire is the root of all suffering. And you were supposed to jot down some points over which you can create some thoughts. Suppose if these topics are given in any group discussion or any kind of group activities, then how will you create your thoughts? That's a challenge. So let me start with a input from your side. क्या कुछ नया सोचा है आपने? कुछ सोच पाए इसके बारे में, या मैं सीधा ज्ञान देना शुरू करूं? मैं सोच रहा हूं मैं ज्ञान देना शुरू करूं, आपका भी पॉइंट लूंगा तो भी टाइम लग जाएगा. देखो, आई एम गोइंग टू डिस्कस 3 डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोचेस फॉर कंटेंट क्रिएशन. यू जस्ट नीड टू लिसन टू मी केयरफुली, बिकॉज उसके बाद जब मैं सवाल पूछूंगा तो आपको वो चीजें अप्लाई करने पड़ेंगी. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस 3 डिफरेंट अप्रोचेस फॉर कंटेंट क्रिएशन. Because whenever you encounter this kind of situation where you have been given a particular topic and there is a 2-minute time to create your thoughts, organize your thoughts and present in a particular group जहां पे ज्यादातर चेहरे आपके अनजान हैं, तो इतना सारा काम 2 मिनट में करना बड़ा मुश्किल होता है, राइट? सो 3 तरह के मेथड्स हम डिस्कस करने वाले हैं. मैं उनके नाम पहले आपको लिख दूं यहां पे. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड KWA. Second is called VAP, and third is called SPELT. What they stand for? KWA stands for Keyword Analysis. Keyword Analysis. अभी इन सारे अप्रोचेस के बारे में हम बात करेंगे. VAP stands for Viewpoint of Affected Parties. Viewpoint of Affected Parties. And here it stands for what? I think I discussed it earlier as well. This is social or sometimes socio-cultural. S stands for socio-cultural. P stands for political. E stands for economic angle. L stands for legal, and T stands for technical or technological. Both you can write technical or technological aspect. Like if you think in the current scenario, lot of businesses what we are seeing nowadays, वो किस वजह से हुए हैं? वो स्मार्टफोन की वजह से, वो इंटरनेट पेनिट्रेशन की वजह से हुए. अदरवाइज देयर वाज नो पॉसिबिलिटी एट ऑल. सो ऑल द ई कॉमर्स या जो भी कुछ आप देख रहे हैं, ऐप बेस्ड जितनी सर्विसेज हैं हमारे पास, वो सब की सब किसकी वजह से हैं? वो सिर्फ इंटरनेट और स्मार्टफोन की वजह से हैं.
So definitely it all has happened in the course of last 10 years, right? So बहुत सारे लोग शायद आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले जिन बिजनेसेस के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, those things were absolutely fathomless, and now we are realizing those things. So उस डिस्कशन में वो भी एस्पेक्ट आ जाएगा. तो ये हमारे पास 3 अप्रोचेस हैं. अब हम एक एग्जांपल लेकर के इन तीनों अप्रोचेस को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे. So I will give you a single topic, right? And then we will try to apply all the 3 approaches on that particular topic. That how can we create thoughts? How can we create ideas with the help of these 3 approaches? It's not mandatory that all the time these 3 approaches are going to be applicable, right? It's not necessary. कई बार हो सकता है कि the combination of different approaches would be helpful to you. कई बार हो सकता है कि इन तीनों में से कोई एक अप्रोच ही वहां पे काम करे, बाकी के 2 ना करे. समटाइम्स इट मे हैपन कि वो ऐसा टॉपिक है कि वहां इन 3 में से सिर्फ 2 अप्रोच ही आपको मदद करे. लेकिन मैं आपको 3 अप्रोचेस बता रहा हूं, और ये जाहिर तौर पे आपको काफी अमीर बनाने वाली है कि अगर कोई मुझे किसी टॉपिक पे बोलने के लिए कहता है कि भाई इस टॉपिक के बारे में बात करो, तो एटलीस्ट मेरे पास कुछ सहारा होगा. आई विल हैव सम हेल्पिंग हैंड्स, राइट, इन टर्म्स ऑफ दीज अप्रोचेस. अब मैं एक टॉपिक आपको देता हूं जिसके आधार पे हम इनको अप्लाई करना समझेंगे. टॉपिक इज एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ फीमेल एनाटॉमी इन एडवर्टाइजिंग दिख रहा है ना आपको? हाँ जी. इन एडवर्टाइजिंग शुड बी बैंड. सपोज दिस इज द टॉपिक. एक डिस्कशन में मॉडरेटर ने आपको कहा कि दिस इज द टॉपिक, एंड अगेन आई थिंक आप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो इस टॉपिक को न समझ सके. सो एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ फीमेल एनाटॉमी इन एडवर्टाइजिंग शुड बी बैंड. Now this is the topic where you are supposed to talk. अभी हम ग्रुप डिस्कशन की बात ही नहीं कर रहे. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ग्रुप डिस्कशन per se, बिकॉज ये पहला स्टेप है ना, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन की बात आएगी. आप पहले खुद ही में सोचो कि अगर कोई मुझे एक इंडिविजुअल के तौर पे ये टॉपिक दे कि एडवर्टाइजिंग के अंदर, विज्ञापन के अंदर महिलाओं के शरीर का जरूरत से ज्यादा जो प्रदर्शन है उसको बैन कर देना चाहिए, ये आपको टॉपिक दे दिया गया. अब आप इसके ऊपर कैसे थॉट क्रिएट करोगे? अब यहां पे हम देखेंगे कि किस तरीके से ये मेथड जो है वो काम करता है. सबसे पहले हम अप्लाई करने वाले हैं क्या, जो सबसे पहला मेथड था, दैट इज कीवर्ड एनालिसिस. समझने की कोशिश करेंगे वर्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं. एक्सेसिव एक्सपोजर. देखो एक टर्म आता है हमारे पास, एक टर्म आता है सब्जेक्टिविटी. सब्जेक्टिविटी. अब सपोज अगर आपको खुद बोलना है तो भी आपको एक पैमाना सेट करना पड़ता है. यू हैव टू डिसाइड द स्कोप ऑफ योर थॉट. इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आई डू डिस्कस दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दैट व्हाट इज द स्कोप ऑफ द पैसेज. व्हाट इज द स्कोप ऑफ द पैसेज, राइट? सो वो स्कोप समझना बहुत जरूरी कि द स्कोप इज नैरो, स्कोप इज ब्रॉड, scope is generic or general, scope is specific. You need to decide that किस रेंज में आप बात करने वाले हैं. क्योंकि कोई भी टॉपिक बहुत चौड़े में बात कर सकते हो और बहुत स्पेसिफिक होकर भी बात कर सकते हो. तो जीडी में आपको एक तरह से खुला मौका मिलता है. सामने वाला ये देखना चाहता है कि व्हाट इज योर रेंज ऑफ थॉट पैटर्न. जैसे कल मैंने आपको खुला छोड़ दिया था, कि भाई सोचो, जो भी सोचना है सोचो, और बड़े अच्छे अच्छे विचार निकल के आए ऑन द स्पॉट. तो अब आपको भी अपना एक दायरा सेट करना पड़ता है कि मैं कितने दायरे में बात करने वाला हूं. और इसीलिए कीवर्ड एनालिसिस बहुत जरूरी है कि उस टॉपिक के अंदर जो वर्ड्स दिए गए हैं, व्हाट डू आई परसीव आउट ऑफ दोज वर्ड्स, एंड व्हेन यू सेट योर एजेंडा, देन द अदर पार्टिसिपेंट्स वुड ऑल्सो बी कंफर्टेबल इन क्रिएटिंग देयर थॉट्स एज वेल. उनको पता लगे कि अच्छा ये जो ए कैंडिडेट है उसने अपना मामला सेट कर रखा है, तो अभी मुझे ये बात तो नहीं करनी, मुझे कुछ और बात करनी है.
और आपको भी सोचने का एक ट्रिगर मिल जाता है कि अच्छा हाँ यार ये भी तो सोच सकते हैं। जैसे कल हमने ब्लैक एंड व्हाइट की बात करी एंड कितने तरह के थॉट्स आप क्रिएट करके लेके आए। तो कीवर्ड एनालिसिस जब हम करना शुरू करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सेसिव एक्सपोजर। हाउ डू यू डिफाइन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सेसिव एक्सपोजर। कौन से एक्सपोजर को, कौन से प्रदर्शन को तुम एक्सेसिव एक्सपोजर कहोगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सेसिव एक्सपोजर, सबसे पहला ये पॉइंट है। अब सोचना शुरू करो इसके बारे में, अब इसके बारे में सोचना शुरू करो कि व्हाट इज बाय एक्सेसिव एक्सपोजर। उसके बाद अगला पॉइंट है फीमेल एनाटॉमी। तो यहां पे फीमेल की ही बात क्यों की जा रही है, या महिलाओं की को ही मॉडल के तौर पे क्यों इस्तेमाल किया जाता है, फीमेल एनाटॉमी, राइट। तो ये भी क्या है, दैट इज ऑल्सो अ कीवर्ड। तीसरा कीवर्ड आपको क्या नजर आ रहा है, एडवर्टाइजिंग की बात करी जा रही। तो भाई किस तरह की एडवर्टाइजिंग, व्हाट काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग। ये एडवर्टाइजिंग टेलीविजन में है, इंटरनेट में है, प्रिंट मीडिया में है, अखबारों में, मतलब अखबारों में है, मैगजीन्स में है, किस कैटेगरी की मैगजीन में है, मासी मैगजीन में है, क्लासी मैगजीन में है। एडवर्टाइजिंग है तो किस तरह के अखबार में है, मासी न्यूज़पेपर्स में है, क्लासी न्यूज़पेपर्स में है। अब आपको जाहिर तौर पे जो हिंदी अखबारों में जिस तरह की एडवर्टीजमेंट मिलती है, क्या वो इंग्लिश में मिलती है क्या, जरूरी है उस तरह के आपको एडवर्टीजमेंट हिंदी में, जो हिंदी में मिल रही है वो इंग्लिश में मिलेगी, नहीं मिलेगी। और जो टाइम्स ऑफ इंडिया में और हिंदुस्तान टाइम्स में जैसी एडवर्टीजमेंट मिल रही है, यू विल नॉट गेट दोस काइंड्स ऑफ एडवर्टीजमेंट इन द हिंदू फॉर दैट मैटर। सो दिस इज व्हाट, because they decide that what kind of audience they are going to address। उनके अखबार का टारगेट ऑडियंस कौन है, कौन मसाला पढ़ने वाला है, और मसाला पढ़ने वाले जाहिर तौर पे ज्यादा लोग रहेंगे। और आप एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात और भी देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इन अखबारों का रेट कम होता है, हाँ या ना, और द हिंदू महंगा होता है। नंबर ऑफ पेजेस किसमें ज्यादा होते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स में। यू विल गेट मोर नंबर ऑफ पेजेस इन टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स, बट द प्राइसेस आर ऑन लोअर साइड। इफ यू कंपेयर दीज टू न्यूज़पेपर्स विद द हिंदू, नंबर ऑफ पेजेस आर लेस, ऐसा नो, नंबर ऑफ पेजेस आर लेस आउट देयर। वहां पे आपको द हिंदू जो है वो, उसमें नंबर ऑफ पेजेस कम होंगे, 22 पेज का अखबार है, 24 पेज का अखबार है, और पैसा जो है वो 10 रुपए है। वीकेंड्स में वो बढ़ के 14-15 हो जाता है, बहुत सारे शहरों में मिलता नहीं, एक दिन बाद जाता, वहां रेट और बढ़ा देते हैं। ये कैसे पता लग रहा है, यू शुड डेफिनेटली थिंक ऑन दीज लाइन्स, बिकॉज लॉजिकली इफ यू आर थिंकिंग, सो इफ द नंबर ऑफ पेजेस आर मोर, सो डेफिनेटली उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट ज्यादा होगी, वो पेपर महंगा होना चाहिए। लेकिन वो पेपर महंगा नहीं है, वो सस्ता है। और यहां नंबर ऑफ पेजेस कम है बट पेपर क्या है, महंगा है, बिकॉज वो मासी अखबार हैं, उनमें मसाले वाली खबरें, सप्लीमेंट्स मसाले वाले, रंगीन चित्रों वाले सप्लीमेंट्स वो ज्यादा आपको मिलेंगे बनिस्बत द हिंदू के। बात समझ आई प्रीति। तो अब एडवर्टाइजिंग में भी किस तरह की एडवर्टाइजिंग, जैसे मैंने अभी बात करी, उसके बारे में सोचना शुरू करोगे आप, भाई एडवर्टाइजिंग कहां बैन करनी है मुझे, टेलीविजन पे बैन करनी है, न्यूज़पेपर्स में करनी है, मैगजीन में करनी है, किस तरह के मैगजीन में करनी है। ए क्लास स्टेशन मैगजीन, बी क्लास, सी क्लास, हर तरह की मैगजीन्स भी होती हैं, राइट। और क्या आप एडवर्टाइजिंग को बैन करेंगे तो क्या, किस तरह की एडवर्टाइजिंग को, मतलब जैसे सरोगेट एडवर्टाइजिंग होती है। अब आप देखो, ये जो हमारे अब बिमल का एड है ना, किसका है वो, जो अजय देवगन के साथ अब शाहरुख खान भी आ गए, राइट। तो अब वो पता नहीं क्या क्या उसमें दिखाते हैं, इलायची एंड समथिंग लाइक दैट, सबको पता है कि वो क्या, किसका एड कर रहे हैं और किस तरीके से वो उसको दिखाते हैं। या सरोगेट एडवर्टाइजिंग एक होती है जब किसी और के, जैसे सरोगेसी होता है ना, सरोगेसी जहां पे किसी किराए के कोख में बच्चा पलता है, तो वैसे ही सरोगेट एडवर्टाइजिंग होती है कि आप किसी और के कंधे पे बैठ के एडवर्टाइजिंग करें। अब आप देखो जैसे ये अवार्ड शोज आते हैं ना, म्यूजिक मिर्ची अवार्ड जो रेडियो मिर्ची के साथ कोलैबोरेशन में आता है, तो आप देखोगे पीछे जो है वो टीचर्स, अब टीचर्स मेरे ख्याल से शराब का ब्रांड है, लिकर का ब्रांड है, तो वो आपको वहां पे दिखाई दे रहा है, राइट। या ये सीडी क्या है, म्यूजिक सीडी, बकार्डी या समथिंग लाइक दैट। तो
ये बहुत, इसमें कंपनियां जो हैं वो शराब बनाने वाली कंपनियां हैं, लेकिन वो साथ में सोडा भी बनाती हैं, तो सोडा का वो एडवर्टीजमेंट करेंगी या सीडी का एडवर्टीजमेंट करेंगी या किसी ऐसे अवार्ड शोज के स्पॉन्सर बन जाएंगी जहां आपको लगातार ही वो दिख रहा है, तो वो किसी और के कंधे पे, क्योंकि शराब का एज सच आप ऐड नहीं कर सकते, राइट? सो इसको क्या कहते हैं? सरोगेट एडवर्टाइजिंग। उसको किस तरीके से बैन करोगे? फिर तो ये क्या है, ये आप सोचना उसके बारे में शुरू करते हैं। और फिर बैनिंग अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। अब देखो 4 वर्ड हमारे पास यहां पे आ गए। दीज आर 4 वर्ड्स, यस आर नो? तो पहले तो अब आइए डिस्कस करना शुरू करते हैं। ये एक्सेसिव एक्सपोजर या मान लो एडिक्वेट एक्सपोजर, कि कितना एक्सपोजर चलेगा साहब, आप बता दीजिए। हैं, आप कैसे डिसाइड करेंगे क्या एडिक्वेट है क्या एक्सेसिव है? आओ इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। हमने शायद पहले भी बात करी थी। इवन आप विक्टोरियन ईरा में अगर देखें तो अंग्रेजों में, मतलब यूरोपियन कंट्रीज में भी महिलाओं का शरीर पूरा ढका रहता था, मतलब पैर की उंगलियां तक नहीं दिखाई देती थी। जब आप इतनी बंदिशें लगाते हैं तो फिर विस्फोट होता है। और फिर यूरोप में देखो कि 500 सालों में लोग यूरोप में नंगे घूमने लग गए, बहुत सारे बीचेज जहां लोग नंगे घूमते हैं। सो दैट हैज बिकम अ नॉर्म। तो अगर आप किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा, मतलब जो नेचुरल नहीं है, जो नैसर्गिक नहीं है, अगर आप उसके ऊपर प्रेशराइज करके कर रहे हैं तो वो गुबार फिर फूटता ही फूटता है। वो गुबार फूटता फूटता है। तो अब वो बिल्कुल बिना कपड़ों के, यहां बहुत कम कपड़ों में हो गए, राइट? अब आप ये भी देखोगे कि किस तरह की सोसाइटी की बात कर रहे हैं। उसमें जैसे अभी हम सोशियो, जो स्पेल्ट मेथड है, मैंने इसीलिए कहा था कि वो भी उसमें इंगेज हो जाएगा फिर, कि भाई हर तरह के समाज के लिए एक्सेसिव एक्सपोजर अलग अलग है। कहीं साड़ी पहनते हैं तो शायद वहां सूट पहनना भी जो है एक्सेसिव एक्सपोजर हो जाए। नई नई बहू आई है तो सासू माँ कह रही है कि तुम तो 2 ही दिन के बाद सूट पहनने लग गई, अभी तो तुम्हें साड़ी पहननी चाहिए, शादी करके आई हो। कहीं सूट सूट पहना जाता है तो वहां शायद जीन्स पहनने को एक्सेसिव एक्सपोजर मान ले, कहीं जीन्स पहना जाता है शॉर्ट्स पहनने को मान ले, कहीं उसको वो 2 पीस में आ जाए, बिकिनी में आ जाए, वो एक्सपोजर हो गया शॉर्ट्स, शॉर्ट्स वाले के लिए। फिर मोनोकिनी भी है, मोनो सिंगल पीस। तो ये क्या है? दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटिव, दैट इज दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटिव। अब जैसे ये जो भी आपके कट्टरपंथी लोग होते हैं, कट्टरपंथी लोग जैसे आप ये आई थिंक घटना शायद बांग्लादेश की थी, जहां पे एक महिला पत्रकार को गोली मार दी गई थी क्योंकि उन्होंने अपना सर नहीं ढका था या हिजाब नहीं पहना, समथिंग लाइक दैट, चेहरा नहीं ढका था, कुछ अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं आ रहा, गोली मार दी उसको। या अफगानिस्तान में आपको पीछे की रिपोर्ट्स 20 साल पहले देख लें या अभी देख लें, किस तरह का काम चल रहा है। तो ये क्या है कि वो एक्सपोजर को कौन डिफाइन करेगा? उसी अफगानिस्तान के अंदर 70s में महिलाएं स्कर्ट्स पहन के घूमती थी। ये वही अफगानिस्तान है जिसने 1919 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया। अमेरिका में अधिकार 1920 में मिला। तो इस समय का, इस तरह का जो समाज रहा, उस समाज को किस लेवल पर आप लेकर के आ गए? तो ये जो एक्सेसिव एक्सपोजर है, इसको आप करेंगे डिस्कस, राइट? क्योंकि ये प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम ये वेरी करेगा। अब इसमें देखो कितने कितने फैक्टर आ गए भाई। प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा, गांव के लोगों के लिए क्या है, शहर के लोगों के लिए क्या है, आप किस टाइमलाइन की बात कर रहे हैं, टाइम टू टाइम चीजें वेरी करती हैं। अब देखो जब जनरेशनल शिफ्ट होती है तो शायद माँ बाप बहुत सारे कंफर्टेबल भी हो जाते हैं, जो उनकी रूढ़िवादिता उनके दिमाग में रहती है उसके पर्दे हटते हैं, वो नई चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं, तो उसमें भी बदलाव आता है, राइट? फिर क्या है यहां पे, जो कल्चर है, कल्चर का बड़ा रोल है कि भाई आप किस कल्चर से आते हैं, किस तरह से आपकी परवरिश हुई है, ये इसका भी रोल आ जाएगा इसको डिफाइन करने में कि भाई तुम्हारे लिए एक्सेसिव एक्सपोजर क्या है। आप ये भी देख सकते हैं कि व्हाट विल बी द इंपैक्ट, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, कल्चर, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ ऑन व्यूअर्स। अब जैसे देखो बच्चों के साथ
बच्चों के साथ, हाँ, रिलीजन का रोल है, एथनिसिटी का रोल है, बहुत बार उसके ऊपर डिबेट होती है। किस तरह इसको हम कहते हैं ना सॉफ्ट मार्केटिंग, फिल्मों के जरिए किस तरीके से चीजों को डाला जाता है आपके दिमाग में, कैसे जीसस को कूल बनाया गया पिछले 20-25 सालों में, राइट। या जो सनातन परंपरा रही है उसको किस तरह से डेनिग्रेट करने की कोशिश करी जाती है। भाई हर एक रिलीजन का अपना सिस्टम है, अपना तरीका है। कमियां, मैं बार बार ये बात करता हूं कि हर धर्म शायद उसी तरीके से है कि भाई जब गंगा गंगोत्री से निकलती तो पवित्र होती है, कानपुर तक आते आते मैली हो जाती है, और इसीलिए उसकी सफाई का काम होते रहना चाहिए। जो सनातन परंपरा इस लैंड की रही है, जिसको हम हिंदुत्व कहते हैं, हिंदुइज्म कहते हैं, इसके बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन भी हैं कि ये किसी धर्म विशेष की बात करी जाती, वो ऐसा नहीं है। धर्म विशेष की बात करते तो इसका पिछले आप 1000 साल 1500 साल का इतिहास देख लीजिए। इतना ज्यादा सहिष्णु देश दुनिया में कहीं पे नहीं रहा, कोई देश नहीं रहा। सबको वेलकम करने वाला, सबसे उसके बाद जिनको वेलकम किया उन्होंने ही यहां के लोगों के ऊपर यातनाएं की, जुल्म ढाए, बर्बाद किया, और फिर हमने उनके सम्मान में नाम भी रखा, उन्हीं के नाम पे अपने रोड्स का नाम रखा। तो इतना सहिष्णु देश, टॉलरेंट धरती दुनिया में कोई नहीं है, और वो इस फिलॉसफी की देन है। लेकिन और शायद वही देन भी है कि ये इतने सालों से चलती भी आ रही है। कितनी सारी सभ्यताएं जो हैं वो यूनान, मिस्र, रोमा मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कितनी बार स्कूल के दिनों में तुमने ये सुना होगा। तो बहुत सारी सभ्यताएं जो हैं वो पैदा हुई और वो सिमट गई, खत्म हो गई, कोई नहीं जानता उनको। अब इसके पीछे जो फिलॉसफी है वो हमारी परंपरा का है, क्योंकि हम वो एक जीवन मिला है और दूसरे पे कब्जा कर लो और जीत लो, और ये एक जीवन है और ये वो हमारा कभी कॉन्सेप्ट नहीं रहा। हम सर्कुलर मॉडल में हमेशा सोचते रहे, लीनियर मॉडल में नहीं सोचते रहे। तो आप कभी भी नहीं देखोगे कि भारत हमला कर रहा है किसी के ऊपर कब्जा करने के लिए। हमने वो काम कभी भी नहीं किया। इतना बड़ा देश जो अफगानिस्तान अभी परेशान है, वो सब भारत का ही पार्ट था, भारतवर्ष का पार्ट था। कब कब अलग हुआ, आप सब ज्यादा विशेषज्ञ हैं, सब कुछ पढ़ते हैं आप। तो हमारे ऊपर, मतलब हम जितने सहिष्णु थे उतना सहिष्णु कोई नहीं था उस मायने में, अगर आप देखें। लेकिन जिस तरह के नैरेटिव चलाए जाते हैं, डिस्कोर्स चलाए जाते हैं किसी भी तरह का, अभी देखो एक कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, आई थिंक पता नहीं जगह का नाम मुझे नहीं ध्यान में आ रहा कि महाराष्ट्र में हुआ है कि मध्य प्रदेश में हुआ है, जहां पे कामसूत्र की प्रतियां जला दी गई। कामसूत्र की प्रतियां जला रहे हैं हिंदू धर्म के लोग कि हमारे देवी देवताओं को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। मतलब ये जनरेशन की इतनी खतरनाक हालात हो चुकी है। अनपढ़ और कुपढ़ दो कैटेगरीज होती है ना। एक पढ़े लिखे बेवकूफ होते हैं जिनको कुपढ़ कहा जाता है, और अनपढ़ पढ़े लिखे, भाई पढ़ लिख तो लो, पढ़ लिख तो लो। बहुत सारे अपराध शायद बंद हो जाए अगर तुमने कामसूत्र भी ढंग से पढ़ लिया तो, क्योंकि हमारे देश में हमेशा से वो एक सब्जेक्ट ही टैबू रहा है। तो हम शायद जो मैरिटल रेप्स होते हैं, जो इतनी सारी एट्रोसिटीज होती है महिलाओं के ऊपर, वो शायद ना हो। धीरे धीरे आपकी समझ बढ़े, सेक्सुअल नॉलेज बढ़े कि व्हाट इज अ फीमेल बॉडी, व्हाट इज अ मेल बॉडी, व्हाट आर देयर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। तो वो एक साइंटिफिक स्टडी है, तो उसको जला रहे हैं। तो ये हर धर्म में ये दिक्कत है। जो अनपढ़ और कुपढ़ लोग हैं वो काम ज्यादा खराब करते हैं, और क्या है कि नेगेटिविटी ज्यादा अट्रैक्ट करती है। आप जितना कचरा करोगे वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, सही काम करने वाले लोग उतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं होते। तो आप उठा करके पढ़ें पहले। भाई मॉडर्न मेडिकल साइंस की अगर बात कर लो, वो अभी आया है। अब सुश्रुत इतने साल पहले हमारे सर्जन थे। आप उठा के देखें, चाहे वो साइंस है, खगोल विज्ञान है, कड़ाद, ऋषि का नाम ही कड़ाद था, कड़, अड़ु, परमाणु, हर एक फील्ड के अंदर आपको वो चीजें मिलेंगी। लेकिन उन चीजों को बहुत सिस्टमेटिकली, चाहे वो आप खिलजी के जमाने में देख लें, लाइब्रेरी सबसे पहले जलाई गई। लाइब्रेरी जलाई गई जो कि 2-3 महीने तक जलती रही, क्योंकि जब भी कोई आक्रांता आता है तो वो सबसे पहले आपको दिमागी रूप से गुलाम बनाता है। इंटेलेक्चुअली वो आपको बैंकरप्ट कर देगा कि आपकी जितनी थाती है उसको खत्म करो पहले, फिर हम इनमें अपना डालेंगे। फिर वही बात, मैकाले का भाषण भी आपने सुना ही होगा, पढ़ा होगा इतिहास के डिस्कशन में। उन्होंने क्या कहा था वहां के ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर कि भारत को तो हम वैसे गुलाम बना नहीं सकते, उनकी शिक्षा व्यवस्था का परिवर्तन करना पड़ेगा। कर दिया उन्होंने। वो मालिक थे, हम नौकर थे,
उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में इस तरह का परिवर्तन किया कि आज आजादी के 75 साल के बाद भी हम नौकर बनने के लिए ही लालायित हैं। नौकरी सुनते हो कि नहीं टर्म, जरा गहराई से सोचो। नौकरी, अंग्रेजों को नौकर चाहिए था, ठीक है कि हम उनके गुलाम थे, वो चाहते थे कि हमसे ज्यादा समझदार ना हो जाएं, ज्यादा पढ़े लिखे ना, ये लिमिटेड रहे, क्योंकि इनको एक खास काम करना है, इनको क्लर्क बनना है, बाबू बनना है, जो भी बनना है। वो चले गए, लेकिन हम 75 साल के बाद भी बाबू बन रहे हैं। हम पढ़ाई करेंगे तो वो सरकारी नौकरी के लिए, जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, बहुत डीप डाउन ये इनग्रेन्ड है माता पिता के दिमाग, बेटा बड़े होके कौन सी नौकरी करनी है। शब्द देख रहे हो आप, नौकरी, इतना तो जानते ही हो। यही इसी को कहा जाता है इंटेलेक्चुअल गुलामी। अब आप कहोगे सर आप ये क्या बात कर रहे हैं। नहीं सर, देखो सर, रियलिटी चेक कराते हैं। कहो सर आप यहां तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन होती है, आप क्या बात कर रहे हैं। भाई सब छोटे भाई बहन की तरह हो, मैं दिमाग खोल रहा हूं कि अपने को लिमिटेड नहीं करना। हमें हमारे सपने, हमारी जिंदगी की स्क्रिप्ट कोई और नहीं लिखेगा। अगर आप नहीं लिखोगे, अपनी जिम्मेदारी नहीं लिखोगे, तो लोग तो तैयार बैठेंगे लिखने के लिए। कितनी बार हमने ये चर्चा करी कि हमारे देश के अंदर बच्चा 20-22 साल का हो जाता है, तब तक उसको पता नहीं होता उसको जिंदगी के साथ करना क्या है, या उसकी पढ़ाई चल रही होती है, डिग्रियां इकट्ठी हो रही हैं, बट उसके अंदर स्किल एक पैसे की नहीं है, खुद के अंदर डिफिडेंट महसूस करता है। उसके चार जो दोस्त हैं उनसे उसको बाहर निकाल दो तो बेचारा बेचैन परेशान हो जाएगा। भरी जवानी में इतना हिला हुआ महसूस करता है वो। तो वो क्यों करता है, क्या रीजन है उसके पीछे। ढक्कन बंद है दिमाग का, स्क्रिप्ट लिखी गई है। और फिर जब आपका दिमाग खुलता है, आप सिस्टम में जाते हैं, देन यू गेट टू रियलाइज दैट यस, जो मैंने किया वो शायद मैं नहीं कर रहा था, कोई और कंधे पर रख के बंदूक चला रहा था। तो खैर, अब इनमें चर्चाएं खूब होंगी और ये इन चर्चाओं की बहुत जरूरत है, जिससे आपके दिमाग का थॉट प्रोसेस बेहतर हो। मैंने आपको वही कहा था, मैं क्लर्क बनाने वाला इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कराने आया हूं यहां पे। वो जो 8,000 की नौकरी, 10,000 की नौकरी करते हैं ना, वो तुम्हारे कॉल सेंटर में, उसके लिए स्पोकन इंग्लिश में नहीं आए हो आप यहां पे। वो तो कहीं भी सीख जाओगे, वो तो फ्री में सिखा देते हैं, वो 15 दिन में अमेरिकन एक्सेंट। दैट्स नॉट द पॉइंट। यू आर सपोज टू बिकम एन स्ट्रांग इंडिविजुअल, जिसके पास अपनी सोच समझ हो, जो चीजों को सही पर्सपेक्टिव में देख सके, तौल सके। इन्हीं तौलने का ये मेथड है। तो बात समझ में आ गई। अब देखो, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन व्यूअर्स। अब आप बहुत देखते हैं बहुत बारी कि परिवार में सभी लोग बैठ करके, माँ बाप बच्चे हैं, 3 जनरेशन बैठ करके अगर कुछ पिक्चर देख रही है, या पिक्चर में कई बार ऐसा सीन आ जाता है कि लोग इधर उधर निकल लेते हैं, हाँ या ना, या कोई खांसने लग जाएगा, कोई पानी लेने चला जाएगा, या उसी के बीच में मान लो कोई एडवर्टीजमेंट आ गई तो अब और बड़ी समस्या। मान लो कॉन्डोम का ऐड आ गया, वो तो अब परेशानी है वहां पे। वो एस्पेक्ट है यहां पे कि इफ देयर इज अ चाइल्ड हु इज इन इंप्रेशनेबल एज, जिसके ऊपर जिस चीज का, बच्चों में भाई हर चीज का फर्क पड़ता है, वो सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। तो आप उनको क्या दिखा रहे हैं, आप उनको क्या दिखा रहे हैं, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आज देखो, आज इंस्टाग्राम जो है वो, मतलब उसके लिए क्या टर्म दिया जाए। वहां पे जो फुहड़ता है, वो फुहड़ता पहले जब जिस जमाने में हुआ करती थी, वो उसके लिए अलग अलग टर्म हुआ करते थे। हैं वो जो आपके मूवी में था ना, शोले मूवी में, अरे मौसी हैं, जब लड़का थोड़ा पता नहीं जुए में हार जाता है तो पी भी लेता है, और लड़का कोठे पे भी चला जाता है, वहां प्रदर्शन हो रहा है, नंगा नाच हो रहा है। वही अब आपके पास प्रस्तुत है आपके मोबाइल में, और वो टैलेंट है, वो टैलेंट है। लोग टैलेंट का प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी टैलेंट में अभी तो एक माँ और बेटे, माँ के ऊपर केस हो गया था ना शायद, वो जो अपने ही बेटे के साथ अश्लील गाने पे नृत्य कर रही थी, जो बेटा छोटा था उसका। तो यहां आप छोटी छोटी बच्चियों को जो अश्लील गाने हैं उन पे डांस कराए जा रहे हैं, और आपको लग रहा है इट्स कूल, क्योंकि सब पागल कर रहे हैं और सब वीडियो बना के हर चीज का डाल रहे हैं, तो तुम भी डाल दो, तुम्हारा बच्चा टैलेंटेड हो गया। गाने के क्या बोल हैं, तंदूरी मुर्गी हूं यार, गटकाले मोहे अल्कोहल से, और तुम्हारी बेटी नाच रही है 4 साल की। तुम मां होकर के तुमने भी लीपा पोती खूब की है, और बेटी को भी लीपा पोती करना अभी से सिखा दिया है कि तुम इस लीपा पोती के बाद ही तो सुंदर बनोगी, अभी तक तो तुम उतनी सुंदर हो नहीं। उसको एहसास करा दो कि तुम हल्की हो, अपूर्ण हो, अधूरी हो, खाली हो, खोखली हो। ये जब लीपा पोती हो जाएगी तभी तुम पूरी होगी। एडवर्टीजमेंट तो खैर चल ही रहे हैं फेयर एंड लवली के।
पापा 3 साल का टाइम दे दीजिए शादी में, अभी मैंने क्रीम लगाना शुरू किया है, एक बार नौकरी मिल जाएगी फिर शादी होगी। वो आते थे ना यामी गौतम का एड, फेयर एंड लवली का, ये एड बनाते हैं ये, कि जिंदगी में बस इसी की तो कमी है। ये सब एडवर्टीजमेंट जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये डीओ लगा लो जिंदगी में 4 चांद आ जाएगा, ये क्रीम लगा लो, ऐसे कपड़े पहन लो, ऐसे देख लो, तो वो कर रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कह रहे हो कि एक्सेसिव एक्सपोजर, कि वो किस पे क्या फर्क डालेगा, राइट। एक उम्र के बाद नहीं फर्क डालेगा। अब बच्चे में मान लो हार्मोन्स बदल रहे हैं, केमिस्ट्री बदल रही है, तो उसके लिए उस तरह के चित्र जो है वो उसको एक्साइट करने लग जाएंगे। एक उम्र के बाद आपको शायद फर्क ना पड़े। तो वही है कि जो आपका एक्सेसिव एक्सपोजर का हर व्यूअर पे क्या फर्क पड़ेगा, उसको आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो हमने इस डिस्कशन में ये दोनों एस्पेक्ट डिस्कस कर लिए, फीमेल एनाटॉमी भी और एक्सेसिव एक्सपोजर भी। अब फीमेल एनाटॉमी क्यों है वो आप समझते हैं। कई बार जिस प्रोडक्ट का लेना देना भी नहीं है महिलाओं से, वो भी दिखा दे रहे हो हैं। और डीओ का तो ऐड है, तो इमरान हाशमी, पता नहीं पुराना ऐड था, मुझे अभी नहीं याद आ रहा, अब तो खैर टाइम हो गया उस ऐड को। तो वो निकल रहे हैं बाइक पे और 4 कन्याएं मतलब उनके ऊपर उड़ उड़ के गिर रही हैं, लहरा रही हैं बिल्कुल। तो इस तरह का वो बनाएंगे किसका, डीओ का ऐड। बट डीओ फ्रेशनेस के लिए है, लेकिन उसको भी सेक्सुअलिटी से तुम्हें जोड़ देना है कि एक बार तुमने ये लगा लिया तो फिर तो जो परियां हैं तुम्हारे ऊपर वो तो गिरेंगे बिल्कुल भर भर के, राइट। तो या आप देखो चॉकलेट जैसी चीज का ऐड कैसा बनाते हैं, ये कितना सेंसुअल और कितने प्यारे तरीके से ये दिमाग में घुसते हैं। चॉकलेट का जो ऐड है ना, चॉकलेट या टॉफी जैसी चीजें पहले बच्चों तक सीमित रखी गई थी। आई थिंक ये ऐड शायद 90s में एक ऐड आया था, जहां क्रिकेट के मैदान में एक लड़की पागल होकर पहुंच जाती है, और फिर धीरे धीरे इन्होंने मतलब उसको चेंज करना शुरू किया। फिर अमिताभ बच्चन आ गए, कुछ मीठा हो जाए दिवाली के मौके पे। तो अब आप देखो भर भर के कैडबरी जो है, और उसने प्रोडक्ट बना दिया कि भाई मिठाइयों में तो मिलावट हो रही है, तो आप ये लेके जाओ। तो अब बच्चों से वहां तक आ गए। और अभी देखते हो आप वो कैसे ऐड बनाते हैं, मतलब पूरा जूम करके बनाएंगे, लड़की की होठों से गरम गरम जो है चॉकलेट वो पिघल रही है, एकदम क्लोजअप शॉट लिया जा रहा है लिप्स का। आपको लगता है ये सब ऐसे ही होता है? अरे सब चूना लगाया जाता है, बहुत प्यार से लगाया जाता है, हमें समझ में नहीं आता। आज से आप शायद 10 साल 15 साल पहले चले जाएं, हाँ मेंटोस खाओ दिमाग की बत्ती जल जाए, उसका ऐड देखो, वो किसको दिया था अभी, कपूर हैं। आप शायद आज से 15 साल पहले चले जाएं, लोगों को इतने दिनों का पता नहीं था जितने डेज आज माने जाते हैं। ये किसने ये दिन बनाए? तो सारा ड्रामा है, मदर डे, फादर डे, ब्रदर डे, सिस्टर डे, सारे डे। भले ही बात ना मानो माँ बाप की या सम्मान ना करो जितना करना, उस दिन का फोटो जरूर डाल दो। हर चीज का, सबका फोटो डालना बहुत जरूरी है। या हर चीज का बिजनेस कैसे चलेगा, कैफे कॉफी डे, स्टारबक्स के धंधे कैसे चलेंगे? क्या करने जाते हैं सीसीडी में बच्चे जब जवान होते हैं? तो 14-15 साल, 8वीं 9वीं 10वीं में पहुंच गए। आजकल तो बहुत पहले शुरू हो जाता है, पहले तो कम से कम 10वीं तक जाके होता था, तो आज तो पहले शुरू हो जा रहा है। वो सीसीडी के धंधे कौन लोग चला रहे हैं? क्या वहां कॉफी पीने जाते हैं? उनको नहीं पता आप क्या करने जाते हैं, वो अपना बनाया सिस्टम उन्होंने। अभी वो फरवरी में आता है 7 दिन का एक महोत्सव है, 7 दिन है, सभी दिन का अलग अलग महात्म्य है, सबके कार्ड हैं, जाइए दीजिए। बात समझ में आ रही है? हाँ, हाउ फार विल यू गो फॉर योर लव, देखो आशा ने भी दिमाग दिया अभी डेयरी मिल्क की एड की लाइन। इनकी पंच लाइनें देखो, मतलब ऐसी खतरनाक होती है ना तुम्हारे दिल के तारों में। और जो मासूम लोग हैं, गलिबल लोग हैं, जिनकी जेब कट रही है, जिंदगी का चूना लग रहा है, लेकिन वो मौज में है, कहते हैं आओ लगाओ तो सही, पता ही नहीं लग रहा कि चूना लग रहा है ना, दिक्कत तो ये है। और आप देखेंगे ये सारे ड्रामे समाज के निचले तबकों के लिए होते हैं। सारे ड्रामे समाज में जितना आप नीचे जाएंगे उतना ड्रामा बढ़ेगा।
आप जैसे जैसे ऊपर जाते हो वहां ड्रामा नहीं होता है। आप कभी देखेंगे केक काटते हुए कि अनिल अंबानी, सॉरी अनिल अंबानी का तो हालत खराब हो गया, अनिल हो गए वो, मुकेश अंबानी काट रहे हैं केक या पार्टी कर रहे हैं या खाने गए हैं वो, या रतन टाटा कभी दिखा उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़े लोग नहीं करते, बड़े लोग ये चक्र हमेशा समाज में छोटे लोगों के लिए बुनते हैं क्योंकि उन्हीं से कमाना है उनको। गेटिंग द पॉइंट। अब अगला है एडवर्टाइजिंग। जैसे मैंने बात की कीवर्ड एनालिसिस। एडवर्टाइजिंग मैंने आपको जैसे बात की कि भाई आप किस तरह के एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं। प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक है, राइट है, इलेक्ट्रॉनिक है, सरोगेट एडवर्टाइजिंग है। किस तरह की एडवर्टाइजिंग की बात कर रहे हैं क्योंकि सभी की टारगेट ऑडियंस क्या है, अलग अलग है। अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि भाई ये कहां जाने वाला है, ये टीवी में है, ये न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, किस कैटेगरी में आएगा ये, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा अब इनमें भी अलग अलग तरह की कैटेगरीज हैं, वो डिसाइड कर रहे हैं, तो ये इन पे भी आप सोच सकते हो। या ये भी कह सकते हो भाई व्हाट इज गुड एडवर्टाइजिंग, अच्छी एडवर्टाइजिंग क्या है, गुड एडवर्टाइजिंग क्या है, इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग क्या है। अब जैसे आपने अगर एक ऑब्जर्वेशन करी हो इनके आपके आईफोन के एड के अंदर, अब जैसे बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे होते हैं, मैं देखता हूं जब नोएडा से टू दिल्ली जा रहा होता हूं तो अपने अक्षरधाम के पास, जो लोग दिल्ली नोएडा में हैं ऑब्जर्व किया होगा आपने, तो अक्षरधाम के पास वो आईफोन ने अपना एक तरह से बुक कर रखा, वो अपना ऐड चलाते रहते हैं। तो वहां पे दिखाई देगा कि बूढ़े व्यक्ति का, अफ्रीकन एथनिसिटी का, ओरिजिन का, एक बूढ़ी महिला का, झुर्रियों वाले चेहरे का, राइट, काले सफेद बाल की फोटो वहां पे लगी हुई है। तो अब उन्होंने ट्रेंड क्या खत्म किया कि अब हम जो सो कॉल्ड एक अंडरस्टैंडिंग है एडवर्टाइजिंग की, उसको खत्म करेंगे, राइट, कि नहीं एक सुंदर मॉडल जो है वही ऐड करेगी। तो वो क्या दिखा रहे हैं, वो उन चेहरों को दिखा रहे हैं। आप देखें फिल्म मेकिंग के अंदर भी किस तरह का चेंज आया है। अगर आप 2005 ऑनवर्ड्स देखना शुरू करें तो इवन जो मेन स्ट्रीम डायरेक्टर्स हैं उन्होंने रीजनल सेटअप, लोकल सेटअप, मिडिल क्लास वाले सेटअप की फिल्में खूब बनाई हैं, खूब बनाई हैं वो। अब वो जो 90s में फिल्में बन रही थी, शिफॉन की साड़ियां, सरसों के खेत, नो स्विट्जरलैंड की सड़कें, लाल लाल कारें, स्पोर्ट्स कारें, बाइक ऐसी, सलमान खान, शाहरुख खान, वो चीजें खत्म हुई क्योंकि वो नकली लगने लगी। दैट वॉज नॉट रिलेटेबल, दैट वॉज नॉट रिलेटेबल, राइट। सो इन ईयर 2007 when Jab We Met became a big hit because after DDLJ I think it's been 10 years और फिर वो एक शिफ्ट देखने को मिला। सो कितनी सारी जो जो चीजें हैं, मतलब लोकल चीजें हैं, रीजनल चीजें हैं, उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश करी गई वहां पे। अब वो हर जगह वो सफाई पसंद और उस तरह का नाटक नहीं चाहिए, ओरिजिनलिटी अट्रैक्ट करने लगी क्योंकि हमने मुखौटा इतने लंबे समय तक पहना ना। हमने पर्सनालिटी की बात करी थी, पर्सोना, मास्क, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सो व्हाट इज, एक और अच्छा मास्क पहनना सीखो। नहीं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट मींस व्हाट, कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक इंडिविजुअल के तौर पे निकल के आनी चाहिए। आप यूनिक हैं बाय डिफॉल्ट, डीएनए है आपका अलग बायोलॉजिकली, तो आप अपने आप में, ऊपर वाले ने यूनिक बना के भेजा कि भाई जाओ बेटा तुम, यू आर यूनिक, अपना रास्ता बनाओ। हम क्या, नहीं नहीं मालिक, हम तो पर्सनालिटी डेवलप करेंगे। हम एक तरह की टाई पहनेंगे, एक तरह से बोलेंगे, एक तरह की नौकरी करेंगे, एक तरह की पढ़ाई करेंगे, एक तरह की शादी करेंगे, एक तरह की कारें खरीदेंगे, एक तरह का फ्लैट खरीदेंगे, एक तरह से बच्चों को पालेंगे, एक तरह से उनकी फोटो डालेंगे, उनको कान्हा बनाएंगे। अरे कान्हा को पढ़ा लेते, कान्हा को पढ़ा लो कम से कम उस दिन थोड़ा घर में। अगर ये जो तुम अश्लील फिल्मी गानों पे 2-2, 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल के बच्चों के कूल्हे मटकवा रहे हो, उनको गीता पढ़वा लेते तो वो तुम्हारे लिए कूल नहीं है। कान्हा वाले दिन भी कान्हा का मेकअप करा लो, फोटो खींच कर डाल दो बस, और फिर भिखारी की तरह देखते रहो कितने लाइक आए, कितने लोगों ने पसंद किया, क्या कमेंट किया, इसी में जिंदगी बिता दो। ऐसा जंजाल फंसा है ना ये मोबाइल, डिजिटल डिटॉक्स की जरूरत है। अब छोड़ो, कुछ देर छोड़ दो, सब कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देख रहे हैं दूसरे की ही जिंदगी, लगे हुए हैं। तभी तो बिग बॉस जैसे शो चलते हैं।
कितने खाली और खोखले हैं हम लोग। तो देखो उसमें गुड एडवर्टाइजिंग भी है, इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग भी है, बिकॉज एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग इज अ बिग सब्जेक्ट, इट्स अ बिग सब्जेक्ट, and I do discuss these case studies with the students definitely who are preparing for management exams and with corporates as well, because जब उनके दिमाग खोलने की बारी आती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से अपनी बात को कहते हैं, बिकॉज इन फिल्म मेकिंग यू हैव 100 minutes to put forward your idea, but in an advertisement you have hardly 30 seconds to put forward your narrative, and also in such a manner that should be effective, that should hook up the mind of the masses, are your target audience. So you need to observe these things around you, right? आप जो 100cc की मोटरसाइकिल्स हैं उनका एड आप हिंदी अखबारों में ज्यादा देखोगे ना, फ्रंट पेज पे ज्यादा देखोगे, हिंदी अखबारों में ज्यादा देखोगे, बी क्लास सी क्लास स्टेशन में ज्यादा देखोगे। क्विड आएगी या मारुति की कार है, ऑल्टो है, इन तरह की कारों का एड तुम्हें फ्रंट पेज पे मिल जाएगा, हिंदी अखबारों में ज्यादा मिलेगा, पहला पेज लेंगे वो, और उनमें लिखा भी होगा कि इतने किलोमीटर पर लीटर। कभी आपने ऑडी, बीएमडब्ल्यू, जैगवार या कोई भी जो हाई एंड कार्स हैं उनमें कभी भी माइलेज देखा है कि एडवर्टीजमेंट में लिखा हो माइलेज कितना है? भैया वो 150 फीचर्स हैं वो लिखा होगा उनकी गाड़ियों में। तो उनको पता है कि कौन उनकी टारगेट ऑडियंस है, उसके हिसाब से लैंग्वेज बदलती है, भाषा बदलती है। अब जैसे मुझे तो बहुत बदलना पड़ता है, मैं इतने गियर शिफ्ट करता हूं, फ्रॉम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग टू कैट ट्रेनिंग टू बैंकिंग, एसएससी, इतना रेंज का फर्क है। मासी बच्चा जो शायद 2 लाइन अंग्रेजी सुन ले तो भी इंटिमिडेट हो जाता है, मुझे उससे भी उठा करके उसको एम्पावर करना है कि नहीं बेटा तुम कर सकते हो, और वो करता है और वो सफल होता है। तो ये क्या है? यही है कम्युनिकेशन, दैट यू हैव टू चेंज द गियर्स, यू हैव टू चेंज द गियर्स एंड यू शुड नो कि कब कौन से गियर में जाना है। ये कम्युनिकेशन की बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। तो एडवर्टाइजिंग की बात कर ली हमने, और अब बात कर लेते हैं बैन की। बैनिंग, सोचो जरा, क्या बैनिंग किसी भी चीज का इलाज हो सकता है क्या? बैनिंग क्या कभी किसी चीज का इलाज हो सकता है? अरे सीमेंट के एड में फीमेल मॉडल लेके आ जाता है, फीमेल एनाटॉमी था ना, पता नहीं कौन से सीमेंट का एड था कि वो निकल रहा है पूरा सीमेंट की बोरी लिए हुए और 4 मॉडल्स उसके बगल में, ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का था वो एड कोई, और 4 मॉडल्स उसके साथ जा रही। यार सीमेंट है, ताकत है, महिलाएं सौंदर्य के साथ, एस्थेटिक्स के साथ जोड़ी जाती हैं, ब्यूटी के साथ जोड़ी जाती है, वहां पे हार्डनेस है, वो तो पुरुषों का काम हमेशा से रहा है, उसमें भी तुम लेके आ जा रहे हो फीमेल मॉडल। व्हाट्स द पॉइंट? सो बैनिंग क्या, अब बैनिंग के बारे में आप क्या क्या सोच सकते हैं? सबसे पहला पॉइंट कि बैन करना क्या एक स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं है, आप किसी चीज को बैन कर दो। दूसरा पॉइंट यह है कि विल यू बी एबल टू इंप्लीमेंट बैन। अब इसके बारे में आप सोच सकते हो ना, ये सब सोचने के पॉइंट दिए जा रहे हैं। क्या दुनिया में किसी भी चीज पे जहां जहां बैन लगा, कभी आप उस बैन को रोक पाए? बिहार में शराब पे बैन है तो क्या बिहार में शराब नहीं बिकती? अभी जब पिछले साल इलेक्शन हुआ तो कितनी सारी मीडिया रिपोर्ट सब निकल के आए, सब कह रहे दबा के लोग पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से मिल जाती है, वहां से हमें मिल जाती है। उसमें सरकार के राजस्व का नुकसान हो रहा है, बस लोग तरीके तो ढूंढ ही लेंगे ना। अरे उसकी तो साइकोलॉजी बहुत आसान है, तुम एक छोटे से बच्चे को बोलो कि बेटा उधर मत झांको, वो जाता देखता अच्छा मम्मी कब गई मेरी, जैसे ही गई तो जाकर के वहीं तो देखेगा जहां मम्मी ने मना किया था कि मत देखना। वो तो बच्चे की साइकोलॉजी है। आप किसी चीज को रोकेंगे तो उधर और रुझान बढ़ेगा। 60s में स्मगलिंग के लिए कानून बनाए गए, सोने के लिए कानून बनाया गया, बहुत कुछ, तो सोने की स्मगलिंग बढ़ गई। फिल्मों की थीम ही 70s में मोना डार्लिंग सोना कहां है, तो वो थीम ही बन गई पूरी तरीके से, सोने की स्मगलिंग हो रही है। तो कहने का क्या मतलब है कि बैन करना कभी भी कारगर तरीका नहीं होता। आप बैन करेंगे, बैन तो पहली बात तो एक स्ट्रांग एक्शन है, और दूसरा बैन सक्सेसफुल होगा उसकी पॉसिबिलिटी कम है। उसके बाद एक पॉइंट और भी है कि भाई वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट्स नॉट लाइक चाइना दैट यू कैन बैन ऑन एनीथिंग, यू कैन बैन पीपल, यू कैन बैन कंपनीज। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, so if there is a group of people who do not like certain things,
दे कांट बैन दैट बिकॉज देयर इज अ चंक ऑफ पीपल हु लाइक दैट। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर क्या आप बैन कर सकते हैं क्या? तो जो बच्चे इस तरह से सोचते हैं ना, वो स्मार्ट हैं। अब वो डिस्कशन में बाकी बच्चे धाराशाही हैं, कुछ अपने ही ख्याल में डूबे हैं। सही बात है, बहुत महिलाओं का ना जो प्रदर्शन है वो बहुत बढ़ गया है। अंग प्रदर्शन पे बैन तो लगना चाहिए। अब वो मान लो हिंदी न्यूज चैनल देखता है, वो है, अब वो हिंदी न्यूज चैनल देखता है और घर परिवार में भी कहीं पे कोई इस तरह का डिस्कशन, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है और वो खुद कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करता, तो वो यही सोचेगा, कहेगा हाँ दिस शुड डेफिनेटली हैपन, बैनिंग शुड हैपन, इट इज क्रिएटिंग बैड इंप्रेशन ऑफ वुमेन, समाज में गलत फैल रहा है ये वो नैतिकता की बातें शुरू कर देगा। बट डिस्कशन इज नॉट अबाउट योर ओपिनियन और मोरालिटी, यू नीड टू कम अप विद सर्टेन फैक्ट्स, फिगर्स, logic, reasoning in right context to substantiate your points. And if you're not able to do that, nobody is going to listen to you. And even you will not be very confident while you are putting forward your ideas as well, because you do know कि मेरी बात में उतना दम है नहीं। आई एम जस्ट स्पीकिंग फॉर द हेक ऑफ स्पीकिंग, क्योंकि बोलना है तो मैं भी बोल दे रहा हूं, लोगों ने बोला है, और जो अच्छा कैंडिडेट होगा वो इसके दिमाग के घोड़े ऐसे दौड़ेंगे। तो ये था आपका क्या, की वर्ड अप्रोच। की वर्ड अप्रोच जो है इसके बारे में आप यहां पे सोच सकते हैं। अब देखो जो अगला मेथड है वैप, व्यू पॉइंट ऑफ अफेक्टेड पार्टीज। यानी अगर सरकार ने यह फैसला लिया या ऐसा अगर किया गया तो जो जो प्रभावित होगा वो कैसे प्रभावित होगा। अब कौन कौन प्रभावित होने वाला है इस फैसले से, अब उसके बारे में दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। कौन कौन प्रभावित होने वाला है? सबसे पहले से मैंने बात की ऑडियंस ऑफ एडवर्टीजमेंट, उनके बारे में हमें सोचना है। ऑडियंस ऑफ एडवर्टीजमेंट, चाहे वो पाठक है, वो दर्शक है, व्यूअर्स, रीडर, पेरेंट्स, चिल्ड्रेन, किस पे क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी चीजें। उसके बाद एडवर्टाइजर्स, बेचारे एडवर्टाइजर्स का धंधा कैसे चलेगा, एडवर्टाइजर्स का धंधा किस तरीके से चलेगा, उनके बारे में भी तो सोचना है। जिन कंपनियों के प्रोडक्ट जो हैं एडवर्टाइज करे जा रहे हैं, कंपनी बनाना चलाना इतना आसान काम तो होता नहीं है। आप तक जब कोई भी फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस आती है उसके पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है, राइट। तो जो एडवर्टाइजर्स हैं, जिनकी कंपनियों के एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं, जिनके प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज किया जा रहा है, सर्विस को एडवर्टाइज किया जा रहा है, उनके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तीसरा, एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है उनके ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। जाहिर तौर पे देखो भाई, उनका रेवेन्यू वहीं से जनरेट होता है। अभी जब हमने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स का प्राइस कम होता है जबकि नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा होते हैं, क्यों प्राइस कम रख पाते हैं वो, क्योंकि मासी अखबार है, ज्यादा नंबर्स में बिकते हैं और इसीलिए उनमें ज्यादा एडवर्टीजमेंट होती है। क्लासिफाइड्स के पेज जो है वो ज्यादा होते हैं इन अखबारों के अंदर। क्यों? क्योंकि उसी से अखबार को पैसा कमाता है अखबार, और उसको पता है कि मासेस पैसा कम खर्च करेगी, तो उसको पैसा कौन देगा, एडवर्टाइजर पैसा देगा। तो ये सारा तंत्र है कि किस तरीके से ये सारा सिस्टम चल रहा है। तो जो चाहे वो टीवी है या मैगजीन वाले हैं या न्यूज़पेपर्स हैं आपके, तो इनका क्या पर्सपेक्टिव है, ये अपनी भरपाई कैसे करेंगे। अखबार हमेशा से एक आम जनता तक सूचना पहुंचाने का माध्यम रहा है, और वो कारण क्या रहा है उसका, क्योंकि भाई उसकी प्राइसिंग कम होती है। तो आप उसके बारे में सोचिए और उसके बारे में पॉइंट्स दे सकते हैं। फिर आप बात करेंगे मॉडल्स की। जो बेचारी मॉडल्स आती हैं छोटे छोटे शहरों से, ये सपने लिए कि हम मॉडलिंग के जरिए अपना करियर शुरू करेंगे, फिर कुछ लोग देखेंगे तो फिर मुझे शायद सीरियल्स में, सीरीजेस में काम करने को मिले, फिर फिल्मों में काम करने को मिले। तो उनका क्या होगा, उनका क्या होगा, उनका काम किस तरीके से चलेगा, उनकी जीविका कैसे चलेगी, राइट। सो आप एक सेल्फ राइटियस ले लिया आपने फैसला कि नहीं, बैन कर देना चाहिए। व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव मीन्स ऑफ देयर लाइवलीहुड, वो तो पूरा उसी काम के लिए बने हुए हैं, राइट। तो अब जब इन पॉइंट्स पे आप सोचते हैं तो एटलीस्ट अगर तुम हर एक पॉइंट के ऊपर 15 से 20 सेकंड भी बोलते हो ना, 15 से 20 सेकंड भी बोलते हो अगर आप, तो आपका 1 मिनट बन जाता है बोलने के लिए ग्रुप डिस्कशन के अंदर। और अदरवाइज अगर आप इलेबोरेट कर लें तो 4 पॉइंट है, हर पॉइंट पे तुम 1-1 मिनट, 1.5 मिनट तो बोल ही सकते हो।
राइट, क्योंकि ये तो मेन पॉइंट्स हैं। अब इसके ऊपर अगर मैं सोचने को कहूं तो आप क्या क्या सोच सकते हैं? जैसे हमने ऑडियंस एडवर्टाइजिंग की बात करी, वो सारी चीजें उसको आप ध्यान में रख सकते हैं, राइट, कि भाई इस तरह के ऐड बनाओ कि परिवार के सभी लोग बैठ के साथ साथ देख सकें, और वो बनाया भी जा सकता है और बहुत इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट बनाई जा सकती है। तो आप इस तरह के अश्लीलता भरे, जहां पे एक्सेसिव एक्सपोजर है, उसको मत बनाइए, राइट, क्योंकि जो बच्चे इंप्रेशनेबल एज में हैं उनके ऊपर फर्क पड़ेगा, बच्चों के ऊपर फर्क बहुत जल्दी पड़ता है, वो कॉपी करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो ऑडियंस के बारे में आप बात कर सकते हैं, जैसे हमने जो भी सारी बातें करी हैं अभी। एडवर्टाइजर्स, अब वहां पे जैसे अभी हमने बात करी कि टीवी है, मैगजीन है, अखबार वाले हैं, तो ये एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हो गए। एडवर्टाइजर्स जो कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट या सर्विसेज एडवर्टाइज करे जा रहे हैं, उनका कितना नुकसान होगा, उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, क्योंकि उनको तो पूरा हक है अपने प्रोडक्ट या सर्विस को वो जिस तरीके से चाहें, जिस मैनर में चाहें, वो एडवर्टाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहां पे सीधी बात आ गई कि इनका रेवेन्यू कैसे चलेगा, इनका लाइवलीहुड, इतने सारे लोग इन चीजों में जुड़े रहते हैं इतने लेवल पे जो हैं, उनका काम कैसे चलेगा। मॉडल्स जो हैं, जैसे मैंने कहा कि उनका लाइवलीहुड क्या है, का और क्या जरिया हो सकता है, उनका जीवन फिर प्रभावित होगा, उनके लिए क्या व्यवस्था है। और अगेन, एक डेमोक्रेटिक फ्री कंट्री के अंदर दे हैव द फुल राइट टू एक्सरसाइज देयर द राइट ऑफ लाइफ, एक्चुअली फॉर दैट मैटर, कि वो जिस तरह से अपना जीवन लीड करना चाहते हैं या चाहती हैं, दे आर अलाउड टू डू दैट, राइट। जब तक मतलब जो भी हमारे मानक हैं उनके अंदर अगर वो काम कर रहे हैं तो इस तरीके से जब आप सोचते हैं तो फिर आपके पास अपने आप विचार आने लगते हैं, थॉट्स क्रिएट होने लगते हैं। बात समझ में आई? स्पेल्ट मेथड हम अगली क्लास के लिए छोड़ते हैं, आज के लिए आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट। हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस ऑफ टुडेज क्लास? डिड यू गेट समथिंग न्यू और नॉट? सो देखो, these things are this kind of knowledge is only possible when you allow yourself to be exposed to different kinds of stuff, right? तो हमेशा ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, सुनना, देखना ये बहुत जरूरी है, और एक ऑब्जर्वर के तौर पे, ऑडियंस के तौर पे नहीं, ऑडियंस के तौर पे नहीं देखना। जैसे मैंने आपको समझाया ये कि सब लोग चूना लगा रहे हैं हमें, और हमें पता ही नहीं लगता कि चूना लग रहा है। जैसे देखो, स्पोकन के नाम पे कितना चूना लगता है, तुम्हें ट्रांसलेशन सिखा दिया जाता है, या जो इंटरनेट पे पीडीएफ पढ़ी हो उनको प्रिंट करा के तुम्हें किताब दे दी जाएगी, या उसी को क्लास में बांट दिया जाएगा, और 3,000-4,000 रुपए एक महीने के क्लास का वो ले लेंगे, और तुम जाकर के दे भी आओगे, और वो 2-4 बार अच्छी अंग्रेजी में बोलेंगे, माहौल बनाएंगे, तुम्हें लगेगा हाँ अरे तुम बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे भाई। मैं इतना टाइम की स्पोकन में इसीलिए लगा दिया, मुझे लगा कि यार ऑनलाइन में ना ज्ञान तो दे दूंगा मैं, बट बच्चों से कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, वो बेचारे कैसे बेहतर करेंगे। तभी मैं आपसे बीच में सवाल पूछ लेता हूं, जैसे कल का सेशन था। सो यस्टरडेज सेशन वाज योर फीडबैक, बिकॉज अनलेस आई एम अवेयर ऑफ योर स्टैंडिंग, करंट स्टैंडिंग, दैट वेयर यू स्टैंड एज ऑफ नाउ, मैं कैसे हेल्प करूंगा आपको और बेहतर करने में, क्योंकि स्किल्स की क्लासेस में जब तक इंटरेक्शन ना हो पॉसिबल नहीं है। तो मैं ही सिर्फ यहां से बांच रहा हूं, मैं तो भाई बोल ही रहा हूं, मुझे क्या दिक्कत है बोलने में, 10 साल हो गए बोलते हैं अंग्रेजी सेशंस देते हुए। मुझे आपको बुलवाना है, आपको एम्पावर करना है, आपकी प्रोनाउंसिएशन सुधारनी है, आपका उच्चारण बेहतर करना है, आपको वोकल इंटोनेशन सिखाना है कि बेटा इम्ब्रेस और एम्बैरस में क्या फर्क है, कैसे बोल के चेंज करोगे। हर एक टेक्निकल एस्पेक्ट, सारे अंगों का, स्पीच में जो जो ऑर्गन्स इस्तेमाल होते हैं, क्या रोल है, कैसे साफ बोलो, रिकॉर्ड करो, सब तो सिखा रहा हूं यहां पे। अब जब वो चीजें, पहले आपको क्या कहा कि बेटा अखबार पढ़ो और इन चीजों को ऑब्जर्व करो जो आपने पिछले सेशंस में सीखी हैं, लास्ट वीक और इस वीक में भी जो टेक्निकल चीजों पे हमने बात की है स्पीकिंग के, तो आप उन चीजों को ऑब्जर्व करिए। रीडिंग के समय अपनी आवाज बिल्कुल बुलंद तरीके से आप ऐसे बोलें जैसे आप एक फॉर्मल सेटअप में हैं, आप एक न्यूज रीडर हैं, ऐसे मान लो कि यू आर अ न्यूज रीडर। आई गॉट टू लर्न अलॉट फ्रॉम न्यूज रीडर्स ओनली, बिलीव मी। आई हैव बीन वॉचिंग शिरीन भान राइट फ्रॉम 2009 और 8, 2008-9 से मैं शिरीन भान को देख रहा हूं,
और पहले से ही देख रहा हूँ मेरे ख्याल से। बिजनेस चैनल तो आई थिंक 6-7 से मैंने शुरू कर दिया था। एनडी आपका सीएनबीसी टीवी 18 वो तभी से है वहां पे। CNBC TV 18, NDTV Profit, UTV Bloomberg, Economic Times Now. I have been watching these channels in my teenage या 20s में। मैं ये चैनल्स देख रहा था। मैं स्प्लिट्स विला और रोडीज ये नहीं देख रहा था। मुझे वो वाला कूल नहीं बनना था। उस कूल का कोई मतलब नहीं। कई लोग 10 साल अपने 10 साल उसी में खराब कर लेते हैं, फिर नीलबट्टा सन्नाटा हो जाता है मामला। तो आपको अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ेगा कि मुझे जिंदगी में किधर जाना है और कहीं भी जाना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट। इफ यू आर नॉट अ गुड कम्युनिकेटर, you are not able to create thoughts in a pressurized situation, and you are not able to communicate or convey those thoughts in an effective manner, then you are handicapped. You are handicapped. यहां पे मैं आपको डिफरेंटली एबल्ड नहीं बोलूंगा, यहां तो मैं आपको डिसेबल्ड बोलूंगा, हैंडीकैप्ड बोलूंगा और सही मायनों में विकलांग बोलूंगा। विकलांग तो फिर हम ही हुए। पैरालंपिक्स वाले मेडल्स लेके आ रहे हैं इतने सारे, ओलंपिक वालों से नॉर्मल वालों से जीत जा रहे हैं। गूंगे बहरे लोग इतना अच्छा कम्युनिकेट कर लेते हैं, इतने इफेक्टिव होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, आई मूवमेंट, उन्हें कुछ नहीं सिखाना होता। आगे वो भी सब आपको सिखाऊंगा मैं यहां पे। वो इतने इफेक्टिव, ऊपर वाले ने हमें बोलने की नेमत दी है, बोल सकते हैं, लेकिन सीखना नहीं चाहते कि ढंग से बोले। तो अब यहां सिखा रहा हूं, कोशिश करिए जो चीजें सीखी हैं आपने, अगला 2 दिन है खूब सारा प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। और आज देखो 2 मेथड्स हमारे डिस्कस हुए हैं। अब इनमें आपको जो मैंने टॉपिक दिया था ना, ये वाले कल्चरल पुलिसिंग इन इंडिया इज द नेसेसरी इवल। अब आप इसमें कीवर्ड एनालिसिस तो कर ही सकते हो ना। व्हाट इज कल्चरल पुलिसिंग, राइट? फिर व्हाट इज नेसेसरी इवल, एंड देन इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ये 3 आपके पास हो गए। अब जरा सोचना शुरू करो, आप सोचना शुरू करो, राइट? डिजायर इज द रूट ऑफ ऑल सफरिंग। व्हाट इज डिजायर? सबसे पहले तो डिफाइन करना है ना। कीवर्ड एनालिसिस का मतलब यू नीड टू डिफाइन दैट वर्ड फॉर यू एंड फॉर योर ऑडियंस एज वेल। जिसको मैंने कहा, यू हैव टू डिसाइड द स्कोप ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, दैट इन विच पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब दैट पर्टिकुलर वर्ड। और जब आपने तय कर लिया, अपना खाका तैयार कर लिया, तब आप उसके बारे में बात करना शुरू करिए। व्हाट इज डिजायर, व्हाट इज नीड, व्हाट इज वांट, राइट? ये कई बार आपको पुश भी करता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, बिकॉज देयर शुड बी पोटेंशियल डिफरेंस इन लाइफ। इफ सबको सब कुछ एक जैसा मिल जाए, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, सब बराबर है, ऐसे तो होता तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वो जो कम्युनिज्म की फिलॉसफी है दुनिया में फ्लॉप हो गई, बिकॉज दैट इज नॉट प्रैक्टिकली फीजिबल और पॉसिबल। If there is a student who is investing his 10 hours for his studies or her studies or whatsoever he or she is doing, and he's becoming successful, and then there are a couple of his or her friends जो कह रहे नहीं he was lucky or she was lucky, वो सफल हो गई, तो ये तो गलत बात है। उसको बहुत कुछ मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। तो तुम शादी भी अटेंड कर रहे हो, तुम गेम्स खेल रहे हो, तुम वीडियोस भी देख रहे हो, तुम प्रिपेयर भी कर रहे हो, और वही साथ तुम्हारा दोस्त है जो सिर्फ प्रिपेयर कर रहा है, उसके पास और कोई काम नहीं है। वो जितनी भी उसकी एक्टिविटीज हैं वो सिर्फ अपने को बेहतर बनाने के लिए। पढ़ाई कर ली, वो ऑल इंडिया रेडियो पे न्यूज सुन रहा है, अपनी प्रोनाउंसिएशन बेहतर कर रहा है, करंट अफेयर्स भी साथ ही साथ उसका तैयार हो रहा है। उसने देखा है कि अच्छा हाँ सर ने ये सारी बातों पर ध्यान देने के लिए बोला है, मैं ध्यान दूंगा। फिर वो खुद बोल रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, वो इतना बिजी है अपने को बेहतर करने में कि उसके पास मौका ही नहीं है टाइम खराब करने के लिए। तो सफल वो होगा ना। अब उसको जो उपलब्धियां मिलेंगी, जो नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगी, सफलता मिलेगी, आप कहें नहीं मुझे भी मिलना चाहिए, मेरे ही साथ तो स्कूल में पढ़ता था। दैट्स इज नॉट पॉसिबल। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, बहुत देसी कहावत है ये। तो इन बातों का ध्यान रखें। आप कहीं से भी आते हैं, किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं, ये स्किल का एरिया है और स्किल के लिए गाइडेंस की जरूरत होती है। उस गाइडेंस पे प्रैक्टिस करना आपका काम है। प्रैक्टिस करोगे, आदतें बदलेंगी, आदतें आपकी किस में ट्रांसफॉर्म होंगी? आदतें ही स्किल में ट्रांसफॉर्म होती हैं, और जब आप स्किल्ड होते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है, irrespective of your any kind of identity, right? So that's all for today's session. I think you got to learn a lot from this particular session. Let's catch up on Monday, and please do prepare and practice in the next 2 days whatever you have learned in these classes so far. Lots of learning is waiting for you. Thank you.